मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे, उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे, तो क्या आप सीसा पीला भी दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान है वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल एक निचली जात के हैं, भीख मंगे हैं ये लोग। यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी है। পাক অপারেশন বুনিয়ান আন মারসুসকে তির্যক আক্রমণ আসাদুদ্দিন ওয়েসির। পবিত্র কোরআন শরীফের সূরা আস-সাফ থেকে নাম নিয়ে নাপাক মতলবে ব্যবহার করার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন যে এই নামটি যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে এর পরের লাইনে রয়েছে যে তুমি কেন এমন কথা বলছো যা তুমি করছো না। আসাদুদ্দিন ওয়েসি পাক অপারেশন বুনিয়ান আন মারসুসকে বেনজির আক্রমণ করে বলেন যে পাক সেনা পবিত্র কোরআনের সঙ্গেও মিথ্যাচার করছে, অসৎ উদ্দেশ্যে কোরআনকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানকে মার্কা মারা ভিখারি বলেও তোপ দেগে আইএমএফ এর কাছে ঋণ নেওয়া প্রসঙ্গে ক্ষুব্ধ আসাদুদ্দিন ওয়েসি। ভারতের আপত্তি সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার আইএমএফ পাকিস্তানকে ফের ঋণ মঞ্জুরি দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করে পাকিস্তানকে বিশ্বের মার্কা মারা ভিখারি আখ্যা দিয়ে কটাক্ষ করেছেন অল ইন্ডিয়া ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েসি। প্রসঙ্গত, অপারেশন সিন্দুর প্রতিরোধে পাকিস্তানের অপারেশন বুনিয়ান আন মারসুসকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আক্রমণ করে সাংসদ তথা এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েসি বলেছেন, পাক সেনা পবিত্র কোরআন শরীফকে মিথ্যাচারের সঙ্গে মেলাচ্ছে। পাকিস্তান কোরআন থেকে অপারেশনের নাম রাখলেও নামের আড়ালে নাপাক মতলব রেখেছে। কোরআনের এই নামের পরের শ্লোক বুঝে নামকরণ করা উচিত ছিল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এই নামের সঙ্গে কোরআনের পবিত্র আয়াতের সঙ্গে কোনো মিল নেই। মিথ্যাচার করে এমন নাম রাখায় পাক সেনাকে শানিত আক্রমণ করেছেন আসাদুদ্দিন ওয়েসি। এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। দেশের আলোচিত হায়দ্রাবাদের সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়েসি পাক সেনার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে যখন বাংলাদেশি বাঙালি সেখানে বাঙালি মুসলিমদের উপর গুলি বর্ষণ করেছিল তখন কি কোরআন ভুলে গিয়েছিলেন? তদানীন্তন পাক বড় নেতা ভুট্টো তো বাঙালি মুসলিমদের সেখানে শুকর বলে সম্বোধন করেছিলেন। এই সময় মানব প্রেম আর মুসলমান প্রীতি কোথায় ছিল পাকিস্তানে? আরো এক পাক বড় মাপের নেতা নাকি ভারতীয় মুসলিমদের মলচাস অর্থাৎ নিম্নমানের বলেও উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেন, দুঃখ হয় আজকের দিনে কোরআন শরীফকেও পাকরা নাপাক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে বলে উল্লেখ করে পাকিস্তানি সেনাকে তরজা ঠোকেন আসাদুদ্দিন ওয়েসি। আমাদের হাতে মন্তব্য রয়েছে, শুনবো ওনার মুখ থেকে বিস্তারিত। आ रहा था जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, तो पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ही आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे, तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान है वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल एक निचली जात के हैं।
अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया थे उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। सूरत साफ की आयत है। ये इस्लाम और एक नाम लेकर ये जंग नहीं कर रहे, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ये बार बार इस्लाम तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रजा यहां पर है, हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बोलो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी है। कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं जबकि हमारे जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LAT के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।